morning, everybody. Yes, we are live now. Welcome to GSGAN Society. Today, we are going to discuss the marathon session of Polity and Constitution of India, which will be important for UPSC and OPSC. Upcoming UPSC exam is going on June 16. So make sure before that previous year question will be in your hand. So the concept related to the previous year question will be discussed in this video. So let's stay tuned for 1 hour to get more. Without any delay, let's get started. Where we left yesterday, we'll continue today. Consider the following statement. The Rajya Sabha alone has the power to declare that it would be national interest for Parliament to legislate with the respect to a matter in the state list. Second statement, the resolution approving the proclamation of emergency are passed only by the Lok Sabha. तो स्टेटमेंट 1 क्या है? नहीं, स्टेटमेंट 1 क्या है? करेक्ट है, इसलिए ये करेक्ट है स्टेटमेंट 1, क्योंकि आर्टिकल 249 में लिखा है कि राज्यसभा पास रिजोल्यूशन ओके टू मेक लॉ इन स्टेट लिस्ट। तो यहाँ पे स्टेट लिस्ट में पार्लियामेंट लेजिस्लेशन बना सकता है आर्टिकल 249 के अंडर। रिजोल्यूशन अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी आर पास्ड बाय ओनली लोकसभा, ओनली लोकसभा दिया है। ओके, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? ये बोथ द हाउस दिया होता तो ये सही होता। तो ये राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 52। Accession, the Council of Ministers in the Union and of India is collectively responsible both to the Lok Sabha and Rajya Sabha. Reason दिया है, the member of both the Lok Sabha and the Rajya Sabha are eligible to be minister of the Union of Government. तो देखो, Council of Ministers of Union of India is collectively responsible both for the Lok Sabha and Rajya Sabha. नहीं, ये लोक सभा को रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बोथ के लिए नहीं है। ओके, लोकसभा ओनली होता तो ये सही होता है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट रीजन, द मेंबर ऑफ बोथ लोकसभा एंड द राज्यसभा आर एलिजिबल टू बी मिनिस्टर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। ये स्टेटमेंट ये ट्रू है, तो ए इज ट्रू, ए इज फॉल्स, बी आर इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 53, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जवाहरलाल नेहरू was in his fourth term as the Prime Minister of India at the time of his death. Okay, statement 2, Jawaharlal Nehru represented Raebareli constituency as a member of parliament. Okay, statement 3, the non-Congress Prime Minister of India assumed the office in the year 1977. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो, जवाहरलाल नेहरू was in his fourth term at the time of death, ये स्टेटमेंट सही है। Jawaharlal Nehru represent Raebareli constituency as a member of parliament. Okay, तो ये क्या हो गया? ये गलत हो गया, क्योंकि तभी वो फुलपुर, याद रखो, फुलपुर कॉन्स्टिट्यूंसी यूपी का, फुलपुर कॉन्स्टिट्यूंसी यूपी का है। ओके, उससे वो रिप्रेजेंट कर रहे थे। द नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एज्यूम्ड ऑफिस इन द ईयर 1977। तो ये हो गया सही, याद रखो 1997 में जनता पार्टी गवर्नमेंट सीएम पीएम बना था। जनता पार्टी पीएम कौन बना था? याद रखो, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई वो 1977 से लेके 1979 तक बने थे। ओके, ये ओनली डी होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, हु वाज द स्पीकर ऑफ फर्स्ट लोकसभा? फर्स्ट लोकसभा का स्पीकर कौन है? हुकुम सिंह, जीवी मावलकर, के एम मुंशी, डी यूएन धीवर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जीवी मावलकर, ये फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा थे। याद रखो, इनका टर्म 1952 से लेके 1956 तक है था। उसके बाद हुकुम सिंह का 1962 से लेके 67 तक था। मुंशी एंड
ये दोनों कभी भी स्पीकर नहीं बने। क्वेश्चन नंबर 55, consider the following statement in respect to financial emergency under the article 360 of the Constitution of India. Statement 1, the proclamation of financial emergency issued shall cease to be operate at the expiration of 2 months unless before the expiration of the period it has been approved by the resolution of both the House of the Parliament. Statement 2 दिया है, if any proclamation of financial emergency is in operation, it is competent for the President of India to issue direction for the reduction of salary and allowance of any all or any class of persons serving in the connection with the affair of union, but excluding the judge of Supreme Court and High Court. तो ये क्या हो गया, एक्सक्लूडिंग, तो ये स्टेटमेंट ही गलत हो गया, यहाँ पे एक्सक्लूडिंग लगा दिया ना, सुप्रीम कोर्ट जज का, हाई कोर्ट का। ये फाइनेंस इमरजेंसी में उसका उनका सैलरी एंड बॉक्स ये सब रिड्यूस कर सकते हैं प्रेसिडेंट, और ये तो ये 2 मंथ। ओके, तो स्टेटमेंट 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द चेयरमैन ऑफ द कमिटी ऑफ पब्लिक अकाउंट is appointed by the Speaker of the Lok Sabha. Statement 2 दिया है, the committee on public account comprise member of Lok Sabha, member of Rajya Sabha and few eminent person of industry and trade. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो याद रखो, इनमें से ये स्टेटमेंट तो सही है, स्पीकर अपॉइंट करते, लेकिन ये स्टेटमेंट सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? तो याद रखो, इनमें से पब्लिक अकाउंट कमेटी में टोटल 22 मेंबर है, उनमें से राज्यसभा से, राज्यसभा मीन्स अपर हाउस 7 एंड लोकसभा से 15 मेंबर रह जाते। ओके, नेक्स्ट 57, हु अमंग द फॉलोइंग हैव हेल्ड द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनमें से कौन जो कि वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस ही एज्यूम किए थे? ऑप्शन ए स्टेटमेंट 1 दे, मोहम्मद हिदायुल्लाह, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीवा रेड्डी, शंकर दयाल शर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ना, वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस मोहम्मद हिदायुल्लाह एंड शंकर दयाल शर्मा ये दोनों ने एज्यूम किया था। तो 1 और 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो देखो, मोहम्मद हिदायुल्लाह ने 1979 से लेके 84 तक टर्म उनका वाइस प्रेसिडेंट का था। शंकर दयाल शर्मा का 1987 से लेके 92 तक इनका टर्म का था। ओके, मैच द लिस्ट 1 लिस्ट 2 ऑफ द सिलेक्टेड, करेक्ट द यूजिंग कोड गिवन बिलो इन द लिस्ट। लिस्ट 1 में पर्सन का नाम दिया है, लिस्ट 2 में पोजीशन का दिया है। तो पर्सन के साथ उनका पोजीशन को क्या करना है, मैच करना है और करेक्ट कोड को बताना है। लिस्ट 1 में नागेंद्र सिंह चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, सॉरी नागेंद्र सिंह कौन थे? याद रखो, नागेंद्र सिंह चीफ जस्टिस ऑफ, सॉरी प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल काउंसिल थे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, नागेंद्र सिंह। नेक्स्ट एन रॉय कौन थे? एन रॉय याद रखो, एन रॉय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। नेक्स्ट आर के त्रिवेदी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का ऑफिस आजम किए थे, पोजीशन। नेक्स्ट अशोक दलाई कौन थे ना, अटॉर्नी जनरल थे। तो इसका करेक्ट कोड क्या हो जाएगा, 1 का 2
बी का 3, सी का 1, ओके, डी का 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी, ऑप्शन बी। मूव करें 59 नंबर क्वेश्चन। Consider the following statement. The Constitution of India provides that the Legislative Assembly of each state shall consist not more than 450 members chosen by direct election from the territorial constituency in the state. Statement 2 दिया है, a person shall not be qualified to be chosen to fill a seat in the Legislative Assembly of a state if she or he is less than 25 years of age. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? करेक्ट पूछा, स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट को देखो, द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट शैल कंसिस्ट नॉट मोर देन 450 मेंबर्स। तो यहाँ पे 450 नहीं, नॉट मोर देन 500 होगा। मिनिमम क्या होगा? मिनिमम नॉट लेस देन 60, मैक्सिमम नॉट मोर देन 500। याद रखो 40 भी है, छोटा छोटा स्टेट का मेंबर 40 है, लेकिन ये एक रूल है कि 60 से कम नहीं होगा कि 500 से ज्यादा नहीं होगा, नॉट मोर देन। ए पर्सन शाल नॉट क्वालिफाइड, ये स्टेटमेंट सही है तो ओनली 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। विथ रेफरेंस टू यूनियन गवर्नमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट all cabinet ministers shall be compulsorily be a sitting member of the Lok Sabha only। यहाँ पे देखो सिटिंग मेंबर के बारे में बोला है, मतलब वोटिंग के बारे में नहीं बोला है। ये लोकसभा से सिर्फ लोकसभा से नहीं हो सकते, वो मेंबर क्या हो सकते ना, राज्यसभा से भी हो सकते। जैसे कि हमारा एस जयशंकर, निर्मला सीतारमन, ये सब कौन थे? ये सब राज्यसभा का मेंबर है लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर का हिस्सा है। ओके, नेक्स्ट, द यूनियन कैबिनेट secretary operate under the direction of Minister of Parliament Affairs. Which of the statement given above is are correct? तो कैबिनेट सेक्रेटरी ऑपरेट अंडर द मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट अफेयर, तो ये स्टेटमेंट सही हो गया? नहीं, ये स्टेटमेंट ही गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? ये जो कैबिनेट सेक्रेटरी ना, यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरीट, ये पार्लियामेंट अफेयर नहीं, डायरेक्ट पीएम के चार्ज में है, डायरेक्ट चार्ज ऑफ पीएम में। तो ये स्टेटमेंट गलत था, तो नेदर वन नॉट 2 होगा इसका राइट आंसर। With reference to union government, consider the following statement. The ministry and department of the government of the India are created by the Prime Minister on the advice of the Cabinet Secretary. Statement 2 दिया, each of the ministry is assigned to a minister by the President of India on the advice of the Prime Minister. तो देखो स्टेटमेंट 1 दिया है, the ministry and department of the government of India are created by the Prime Minister on the advice of Cabinet Secretary। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ओके, तो यहाँ पे आर्टिकल 7 में होगा, आपको याद है आर्टिकल 7 में लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर शाल अपॉइंट बाय द प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर शाल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। इसका मतलब एडवाइस प्राइम मिनिस्टर का एडवाइस से बनता है। तो यहाँ पे कुछ एडवाइस ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी, एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर होगा। Each ministry assigned to a minister by the President of India on the advice of the Prime Minister। तो ये स्टेटमेंट सही हो गया।
तो स्टेटमेंट 2 होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया appointed by the president of India upon the recommendation of the governor of the concerned state। स्टेटमेंट 2 दिया है, as provided in civil procedure code, high court have the original appellate advisory jurisdiction at the state level। तो देखो स्टेटमेंट तो सही हो गया, क्योंकि सिविल प्रोसेस हाई कोर्ट का ये जो एडवाइजरी अपीलेट एंड एडवाइजरी जुडिशन है हाई कोर्ट का। नेक्स्ट, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया को ना, इसको प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करते, इसको गवर्नर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ये गलत हो गया, अगर गवर्नर होता तो ये सही होता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ओनली टू, ओनली टू। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Central Administrative Tribunal was set up during the Prime Ministership of Lal Bahadur Shastri। The member of Central Administrative Tribunal are drawn from the both judicial and administrative stream। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो ऑप्शन 1 है, ये गलत है। लाल बहादुर शास्त्री नहीं, ये राजीव गांधी के टाइम बना गया। ओके, 1985। The member of Central Administrative Tribunal drawn from both judicial and, तो ये स्टेटमेंट सही है, तो ओनली 2 होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64, विथ रेफरेंस टू यूनियन गवर्नमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नंबर ऑफ मिनिस्ट्री एट द सेंटर ऑन August 15, 1947 was 18। The number of ministry at the center at present is 36। तो देखो अभी 36 है कि नहीं है, ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया, लेकिन ये अगस्त 15, 1947 में 18 था, ये सही है। तो स्टेटमेंट 1 हो जाएगा, ये गलत है राइट आंसर। With reference to consumer dispute redressal at district level in India, which one of the following statement is not correct? A state government can establish more than one district forum in a district if it deems fit। Option B, it is one of the member of district forum shall be a woman। Option C, the district forum entails the complaint where the value of good and service does not exceed rupees 50 lakh। Option D, a complaint in relation to any goods sold or any service provided may be filed with a district forum by the state government as a representative of the interest of the consumer in general। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ना? ऑप्शन सी, कि डिस्ट्रिक्ट फोरम entertains the complaint where the value of good service does not exceed रुपी 50 लाख। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या करेगा? 50 लाख से जो कम है उसका कंज्यूमर डिस्प्यूट रिजर्सल को दिखेगा, उससे ज्यादा नहीं दिखेगा। ये स्टेटमेंट क्या हो गया? नॉट करेक्ट हो गया, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट ना ये 20 लाख तक ही दिखता है, यहाँ पे 50 लाख दिया है, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया, लेकिन आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही हो गया। when the annual budget is not passed by the Lok Sabha? The budget is modified and presented again. The budget is referred to the Rajya Sabha for suggestion। Option C, the Union Finance Minister is asked to resign। Option D, the Prime Minister submit the resignation of Council of Minister। ये चारों में से ऐसा कौन सा कंडीशन होगा जिसमें एनुअल बजट पास नहीं होगा लोकसभा में? तो याद रखो, अगर प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे क्या रिजाइन करने के लिए सबमिट करेंगे ना, तब ये बजट पास नहीं होगा। द ऑथराइजेशन फॉर द विथड्रॉल ऑफ द फंड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मस्ट कम फ्रॉम। द ऑथराइजेशन फॉर द विथड्रॉल of fund for the consolidated fund of India must come from। ऑप्शन ए दिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी दिया है द
द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी दिया प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी दिया द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर। तो याद रखो द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ऑथराइज कौन करता है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, वोटिंग थ्रू। 60 इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया द पर्पज ऑफ adjournment मोशन इज, पार्लियामेंट में adjournment मोशन का काम क्या है? ऑप्शन ए दिया टू अलाउ टू डिस्कस इन फाइनाइट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपोर्टेंस, ऑप्शन बी दिया टू लेट ऑपोजिशन मेंबर कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द मिनिस्टर, ऑप्शन सी दिया टू allocate a reduction of specific amount in demand for grant, ऑप्शन डी दिया टू postpone the proceeding to check the inappropriate or violent behavior on the part of some members। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रिजोल्यूशन adjournment मोशन पास करने का, ये अलाउ टू डिस्कस ए डेफिनेट मैटर ऑफ पब्लिक अर्जेंट पब्लिक इंपोर्टेंस। क्वेश्चन नंबर 69, consider the following statement. Statement 1, union territory are not represented in Rajya Sabha. Statement 2, it is within the purview of Chief Election Commissioner to adjudicate the election dispute. Statement 3, according to Constitution of India, the parliament consists of Lok Sabha and the Rajya Sabha only. तो देखो स्टेटमेंट 3 तो ओनली दिया इसलिए गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे प्रेसिडेंट का भी रोल होता है पार्लियामेंट मतलब। नेक्स्ट, it is within the purview of the chief election commissioner to adjudicate the election dispute. चीफ इलेक्शन कम का ये नहीं है, ये गलत हो गया। यूनियन टेरिटरी आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन राज्यसभा, ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया क्योंकि दिल्ली और पांडिचेरी जिनमें पुडुचेरी इनमें क्या है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसलिए ये दोनों भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट गलत है, इसलिए कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ द लोकसभा स्पीकर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, he holds the office during the pleasure of president. Statement 2, he need not to be member of house of at the time of election but has to become a member of the house within 6 months from the date of his election. Statement 3, if she or he intends to resign, the letter for his resignation has to be addressed to the deputy speaker. तो ये स्टेटमेंट तो सही हो गया कि अगर वो रिजाइन करना चाहेंगे तो डेप्यूटी स्पीकर को उनका रेजिग्नेशन लेटर देना पड़ेगा। वेट, थोड़ा पेन में थोड़ा डिस्प्यूट आ गया। तो ये स्टेटमेंट तो सही हो गया। नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट देखो, ही सी need not to be a member of house at the time of her election but has to be member of the house within 6 months from the date of his election। तो देखो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया? गलत हो गया क्योंकि अगर वो मेंबर नहीं होंगे तो कैसे हो सकता है? उनको मेंबर होना पड़ेगा क्योंकि लोकसभा के अंदर से ही स्पीकर को चुनते हैं। तो स्पीकर मतलब वो लोकसभा का पहले मेंबर होंगे, फिर उसके बाद स्पीकर के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। स्टेटमेंट 1 को देखो, सी होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। यहाँ पे देखो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट से ऑफिस बेयर नहीं करते। ओके, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो ओनली 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये लोकसभा का लाइफ के ऊपर डिपेंड करता है, प्रेसिडेंट के प्लेजर के ऊपर नहीं डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 71, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेड टू बी एसेंशियली द पार्ट ऑफ इंक्लूसिव गवर्नेंस। इनमें से कौन सा जो कि इंक्लूसिव गवर्नेंस का एक पार्ट है? ऑप्शन 1 दिया, स्टेटमेंट 1 दिया है परमिटिंग द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज टू डू बैंकिंग। स्टेटमेंट 2 दिया है एस्टैब्लिशिंग इफेक्टिव डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी इन द ऑल डिस्ट्रिक्ट। स्टेटमेंट 3 दिया है इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन पब्लिक हेल्थ।
स्टेटमेंट 4 दिया है स्ट्रेंथनिंग द मिड डे मील स्कीम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो, ऑप्शन 1 परमिटिंग द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज टू डू बैंकिंग। तो ये क्या हो गया? ये इंक्लूसिव गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है। क्योंकि अगर देखो एनबीसी एफसी अगर बैंकिंग करेंगे तो पुर पुर पीपुल जो होते हैं, पुर पीपुल नहीं तो डाउन ट्रॉडन जो पीपुल होते हैं, उनके लिए सर्विस क्या हो जाएगा? कॉस्ट हो जाएगा। क्योंकि प्राइवेट एजेंसी है तो बैंकिंग कर रहे हैं, अब गवर्नमेंट का है तो कॉस्ट कटिंग हो सकता है। एस्टेब्लिशिंग इफेक्ट डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी इन ऑल डिस्ट्रिक्ट, हाँ ये सही हो सकता है। इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन पब्लिक हेल्थ, ये भी सही है। स्ट्रेंथनिंग द मिड डे मील स्कीम, ये भी सही है। तो 2, 3, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन इंडिया, other than ensuring that public funds are used efficiently and for intended purpose, what is the importance of the office of the Comptroller and Auditor General of India? देखो स्टेटमेंट 1 दिया है, CAG exercise exchequer control on behalf of the Parliament when the President of India declares national emergency or financial emergency। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। Statement 2, CAG reports on execution of project or program by the ministry are discussed by the Public Account Committee। ये स्टेटमेंट हो गया सही। Information from CAG report can be used by the investigating agency to frame charges against those who have violated the law while managing public finance। ये भी सही हो गया। Statement 4 दिया है, while dealing with the audit and accounting of government companies, CAG has certain judicial power for prosecuting those who violate the law। देखो पावर जुडिशियल पावर नहीं है, ये रेकमेंड करता है सिर्फ। ओके, तो इसके पास कुछ पावर नहीं, इसलिए इसका ये क्रिटिसिज्म है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 2 and 3 आर करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। The Prime Minister of India at the time of his or appointment, option A दिया है, need not necessarily be a member of the one house of the parliament but must become a member of one house within 6 months। Need not necessarily be a member of one house of the parliament but must member of the Lok Sabha within 6 months। Must be a member of one house of the parliament, must be a member of Lok Sabha। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ना ऑप्शन ए, क्योंकि जब अगर कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है तो उनको 6 मंथ के अंदर कोई भी एक हाउस ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर होना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। याद रखो आर्टिकल 71 ए में ये बात लिखा है। 74, the deadlock between Lok Sabha and Rajya Sabha calls for a joint sitting in of the parliament during the passage of, ऑप्शन ए दिया है, सॉरी स्टेटमेंट 1 दिया है ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन, स्टेटमेंट 2 दिया है मनी बिल, स्टेटमेंट 3 दिया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। A deadlock between Lok Sabha and Rajya Sabha calls for a joint sitting of the parliament during the passage of, स्टेटमेंट 1 दिया है ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन, स्टेटमेंट 2 दिया है मनी बिल, स्टेटमेंट 3 दिया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। डेडलॉक किस किस बिल के और अमेंड लेजिस्लेशन को जॉइंट सिटिंग हो सकता है?
तो याद रखो ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के लिए ही जॉइंट सिटिंग हो सकता है। ओके, जो बोलते हैं ना मनी बिल के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए मतलब ये क्या है ना, जॉइंट सिटिंग और डेडलॉक होगा तो जॉइंट सिटिंग नहीं बोला जा सकता। What will follow if a money bill is substantially amended by the Rajya Sabha? The Lok Sabha may still proceed with the bill, accepting or not accepting the recommendation of the Rajya Sabha. या स्टेटमेंट 2 दिया है, द लोकसभा कैन नॉट कंसिडर द बिल फर्दर। स्टेटमेंट 3 दिया, ऑप्शन 3 दिया है, द लोकसभा में सेंड द बिल टू द राज्यसभा फॉर कंसिडरेशन, फॉर रिकंसिडरेशन। स्टेटमेंट 4, द प्रेसिडेंट में कॉल ए जॉइंट सिटिंग फॉर पासिंग द बिल। अभी तो पढ़ाया था मनी बिल में जॉइंट सिटिंग नहीं होता है। स्टेटमेंट 1 हो जाए, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। लोकसभा उसको क्या करेगा, वो बिल को एक्सेप्ट कर सकता है, नॉट एक्सेप्ट भी कर सकता है रिकमेंडेशन ऑफ राज्यसभा। ये डिस्क्रिशनरी पावर है लोकसभा का, इसलिए मनी बिल के केस में, पैसेज ऑफ मनी बिल के केस में लोकसभा का पावर ज्यादा होता है राज्यसभा से। Which one of the following statement is correct? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो कि करेक्ट है? स्टेटमेंट 1 दिया है, ऑप्शन 1 दिया है, इन इंडिया द सेम पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट एट सेम टाइम। स्टेटमेंट 2 दिया है, the judge of the High Court of State in India are appointed by the governor of the state, just as the judge of Supreme Court are appointed by the president. Statement 3 दिया है, no procedure has been laid down in the Constitution of India for the removal of governor from his their post. Statement D दिया है, in case of union territory having a legislative setup, the chief minister is appointed by the lieutenant governor on the basis of मेजोरिटी सपोर्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नो प्रोसीजर हैज बीन लेड डाउन इन कंसर्न इंडिया फॉर द रिमूवल ऑफ गवर्नर हिज हर पोस्ट। कोई भी प्रोसीजर नहीं दिया है, तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है बताना। टेक ए पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ लोकसभा, हाँ ये स्टेटमेंट सही है। बी ए मेंबर ऑफ कमिटी ऑफ लोकसभा, ये भी सही है। स्पीक इन लोकसभा, ये भी सही है। वोट इन लोकसभा, वोट नहीं दे। तो इनका याद रखो, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का वोटिंग पावर नहीं है, लेकिन वो ऑडियंस बन सकता है, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, डिस्कशन में थे, मेंबर हो सकते हैं कमेटी का, लेकिन वो वोट नहीं दे सकते क्योंकि वो मेंबर नहीं है, इलेक्टेड मेंबर नहीं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। द पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटी with the consent of all the state, with the consent of majority of state, with the consent of state concerned, without consent of any state। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ना, ऑप्शन डी, विथआउट कंसेंट ऑफ एनी स्टेट। ओके, पार्लियामेंट इंटरनेशनल ट्रीटी को, एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए होल इंडिया और एनी पार्ट ऑफ इंडिया में कुछ भी लॉ बना सकता है। ओके, मुझे कमेंट करके बताओ कि ये कौन सा लिस्ट में, कौन सा आर्टिकल में ये मेंशन है। 79 का, इन द कंटेस्ट ऑफ इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल आर implied institutionally in the parliamentary governance? The member of cabinet are the member of the parliament. Ministry hold the office till they enjoy the confidence in parliament. Statement 3, cabinet is headed by the head of the state। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो स्टेटमेंट 1 देखो, मेंबर ऑफ द कैबिनेट आर मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, ये सही है। मिनिस्टर होल्ड द ऑफिस टिल द एंजॉय कॉन्फिडेंस इन पार्लियामेंट, ये भी सही है। कैबिनेट इज हेडेड बाय हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट तो प्रेसिडेंट होते हैं। ओके, हेड ऑफ द गवर्नमेंट बोलते हैं।
हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता तो ये सही होता है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? प्राइम मिनिस्टर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 and 2 ओनली। 18 number, consider the following statement. The statement 1, the council of ministers in center shall be collectively responsible to the parliament. The council of ministers in the center shall be collectively responsible to parliament. Parliament नहीं, ये लोकसभा होगा। The union ministry shall hold the office during the pleasure of the president. ये स्टेटमेंट क्या हो गया? सही हो गया। मिनिस्टर क्या करते हैं ना, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे उनका पोस्ट को बेयर करते। नेक्स्ट, थर्ड स्टेटमेंट, द प्राइम मिनिस्टर शैल कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट अबाउट द प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन। द प्राइम मिनिस्टर शैल कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट अबाउट द प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन। ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया? सही हो गया। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 2 and 3। Consider the following statement. The chairman and deputy chairman of Rajya Sabha are not member of that house. Statement 2. While nominated member of the two house of the parliament have no voting right in the presidential election, they have the right to vote in the election of the vice president. तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, करेक्ट पूछा है? The chairman and deputy chairman of Rajya Sabha are not the member of that house. तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। While the nominated member of the two houses of parliament have no voting right in the presidential election, they have the right to vote in the election of vice president. तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। ओनली 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 82, the president shall make rule for the more convenience transaction of business of the government of India and for the allocation of ministry among the minister of this said business. तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया ना? ये स्टेटमेंट सही हो गया क्योंकि आर्टिकल 77 में ये बात लिखा है। सेकंड स्टेटमेंट देखो, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस्ड टू बी टेकन इन द नेम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। देखो प्राइम मिनिस्टर के नाम नहीं लिया जाता है, यहाँ पे प्रेसिडेंट के नाम से लिया जाता है। तो स्टेटमेंट गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर हो गया क्या? ओनली 1। The power to increase the number of judges in Supreme Court of India is vested in नंबर ऑफ जज डिसाइड करने का पावर किसके पास है? तो ऑब्वियसली ये पावर किसके पास है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है तो पार्लियामेंट के पास है। तो कमेंट में करके बताओ कि करेंटली इंडिया का कितने सुप्रीम कोर्ट में कितने जज है, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 84 number question. Consider the following statement regarding no confidence motion in India. There is no motion of a no confidence motion in Constitution of India. No mention of a non confidence motion in Constitution of India. तो ये बात सही है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन नहीं है। याद रखो, आप बोलोगे कि नॉन कॉन्फिडेंस सर मेंशन नहीं है तो कैसे होता है? नहीं, देखो यहाँ पे जो आर्टिकल 75 में लिखा था ना कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, यहाँ से डिराइव होता है कि अगर इनका जो रिमूव करना है ना, इनको नॉन कॉन्फिडेंस मोशन में पास करके रिमूव करना है, यहाँ से आता है। लेकिन नॉन कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ एक वर्ड मेंशन नहीं है। समझ में आ रहा है? मैं मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा ओनली।
तो ये स्टेटमेंट भी सही हो गया, क्योंकि लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो ओनली सॉरी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, बोथ 1 and 2। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट? इनमें से कौन सा जो कि लार्जेस्ट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट है? मेंबर के हिसाब से होगा तो देखते, कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट इनका तो 22 मेंबर है, कमिटी ऑन एस्टिमेट इनका तो 30 मेंबर है, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग इनका भी तो 22 मेंबर है। नेक्स्ट कमिटी ऑन पिटिशन, पिटिशन का इनका तो लोकसभा में 15 है लेकिन राज्यसभा में 10 है। तो राइट आंसर क्या होगा? कमिटी ऑन एस्टिमेट। एस्टिमेट कमिटी में लार्जेस्ट कमिटी बोलते हैं पार्लियामेंट का। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गिवन टू गवर्नर ऑफ द स्टेट? डिस्क्रिशनरी पावर गवर्नर का, जो स्टेट का गवर्नर है उनको इनमें से कौन सा दिया गया है? सेंडिंग ए रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इम्पोजिंग द प्रेसिडेंट रूल, हाँ ये उनका डिस्क्रिशनरी पावर है। अपॉइंटिंग द मिनिस्टर्स, नहीं ये मिनिस्टर नहीं, तो अपॉइंट करना डिस्क्रिशनरी। सीएम जिसको एडवाइस करेंगे उनको मिनिस्टर वो बनाएंगे, तो ये डिस्क्रिशनरी पावर है, ये एडवाइस के थ्रू करते हैं इसलिए ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं। Reserving certain bills passed by the state legislature for the consideration of the president of India, ये भी सही है। ओके ये डिस्क्रिशनरी पावर है, कौन सा बिल वो प्रेसिडेंट के पास रिकंसिडर के लिए भेजेंगे। मेकिंग द रूल टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, नहीं नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के लिए रूल बनाना इनका काम नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 3। Question number 87. Which one of the following is the functions of the cabinet secretary? कैबिनेट सेक्रेटरी का कौन सा फंक्शन है? प्रिपरेशन ऑफ एजेंडा फॉर कैबिनेट मीटिंग, हाँ ये स्टेटमेंट सही है। सेक्रेटरी असिस्टेंट टू कैबिनेट कमिटी, ये भी सही है। एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स टू दी मिनिस्ट्री, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ओके तो ओनली 1 and 2, क्योंकि एलोकेशन ऑफ फाइनेंस टू दी मिनिस्ट्री ये कौन करता है? तो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री करते हैं, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 88. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज वन व्हिच, एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट किससे को बोला जाता है जिसका स्टेटमेंट 1 है, प्लेस इफेक्टिव रेस्ट्रिक्शन ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट अथॉरिटी, हाँ ये सही है। प्लेस इफेक्टिव रेस्ट्रिक्शन ऑन द अथॉरिटी ऑन द स्टेट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी, ये भी सही है। ये दोनों जिसमें है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बोलते हैं कि ना पीपुल का लिबर्टी एंजॉय करने के लिए स्टेट के ऊपर थोड़ा रेस्ट्रिक्शन है, और स्टेट का इंडिविजुअल लिबर्टी के ऊपर थोड़ा प्रेशर रेस्ट्रिक्शन दिया जाता है ताकि स्टेट अथॉरिटी ठीक से चल पाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 89. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। The legislative council of the state in India can be larger in size than half of the legislative assembly of that particular state. काउंसिल बोलता है कि इसका हाफ है, याद रखो स्टेटमेंट गलत होगा, 1/3 होगा। ओके स्टेटमेंट 2 दिया है, द गवर्नर ऑफ द स्टेट नॉमिनेट द चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। गवर्नर ऑफ द स्टेट नॉमिनेट करते चेयरमैन लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ पर्टिकुलर स्टेट। ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया? गलत हो गया।
ये चेयरमैन को ना इलेक्ट करते, इलेक्टेड किसके द्वारा ना, बाय स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल और फ्रॉम स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही, गलत हो गया, तो नेदर वन नॉर टू इसका राइट आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द यूनियन गवर्नमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यूनियन गवर्नमेंट के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो कि गलत है? द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू is responsible for the preparation of union budget that is presented to the parliament। देखो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, डिपार्टमेंट आपको रेवेन्यू बोला है, तो याद रखो ये डिपार्टमेंट आपको इकोनॉमिक अफेयर, ये क्या करता है, बजट को प्रिपरेशन करता है। स्टेटमेंट 2 देखो, नो अमाउंट कैन बी विथड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विदाउट द ऑथराइजेशन फ्रॉम द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो हाँ ये स्टेटमेंट सही हो गया। ओके ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ये स्टेटमेंट सही हो गया। पार्लियामेंट का बिना ऑथराइजेशन के बगैर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से कुछ भी पैसा नहीं निकाल सकते। स्टेटमेंट 3 दिया है, ऑल द disbursements made from public accounts also need to authorize from the parliament of India। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि हर बार पार्लियामेंट का जरूरत नहीं पड़ता है, वो एग्जीक्यूटिव के अंडर रहता है, वो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, वो एग्जीक्यूटिव चाहकर भी उससे पैसा निकाल सकते, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ना, only two statement is correct। There is a parliamentary system of government in India because the इंडिया में parliamentary system of governance है, इसलिए लोकसभा is elected direct by the people, parliament can amend the constitution, राज्यसभा cannot dissolve, council of minister is responsible to लोकसभा। तो याद रखो collective responsibility ये parliamentary system of governance का प्रोमिनेंट फ्यूचर है। ओके तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल ऑफ लोकसभा, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट को पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस भी गवर्नमेंट भी बोलते। नेक्स्ट 92 नंबर क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द राज्य सभा हैज नो पावर एदर टू रिजेक्ट और टू अमेंड ए बिल। स्टेटमेंट 2 दिया, राज्य सभा कैन नॉट वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट। स्टेटमेंट 3 दिया, राज्य सभा कैन नॉट डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? The Rajya Sabha has no power either to reject or amend a bill, money bill। ये स्टेटमेंट सही हो गया। राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट, ये भी सही हो गया, ओनली लोकसभा। राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस द एनुअल फाइनेंस, डिस्कस कर सकता है, कैन नॉट दिया, इसलिए स्टेटमेंट क्या गलत हो गया। तो ओनली बी 1 and 2। 93 when a bill is referred to a joint sitting of the both the house of the parliament it has to be passed by। अगर कोई बिल को जॉइंट सिटिंग पार्लियामेंट का बोथ हाउस के लिए भेजा जाता है, इसको कैसे पास किया जाएगा? याद रखो इसको सिंपल मेजॉरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग में पास किया जाए, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। 94 का देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन द प्राइम मिनिस्टर। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ इंडिया वेस्टेड प्राइम मिनिस्टर। द प्राइम स्टेटमेंट 2 दिया है, the prime minister is ex officio chairman of the civil service board। तो याद रखो the chief executive power of the union is vested with the prime minister, ये स्टेटमेंट गलत है, ये प्रेसिडेंट के अंडर रहता है। नेक्स्ट द प्राइम मिनिस्टर, ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। द प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द सिविल सर्विस बोर्ड, सिविल सर्विस बोर्ड का एक्स ऑफिशियल चेयरमैन, ये स्टेटमेंट गलत है। प्राइम मिनिस्टर नहीं होते, यहाँ पर कौन होता है ना, कैबिनेट सेक्रेटरी।
कैबिनेट सेक्रेटरी क्या होते हैं? चेयरमैन होते हैं, एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ सिविल सर्विस बोर्ड। 95 number question. Democracy's superior virtue lies in the fact that it calls into activity. डेमोक्रेसी का सुपीरियर वर्च्यू है कि इट कॉल्स इनटू एक्टिविटी द इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन, द मेथड ऑफ स्ट्रेंथनिंग एग्जीक्यूटिव लीडरशिप, ए सुपीरियर इंडिविजुअल विथ डायनामिक एंड विजन, ए बैंड ऑफ डेडिकेटेड पार्टी वर्कर्स। ये जो एक्टिविटी, क्योंकि ये डेमोक्रेसी का सुपीरियर वर्च्यू क्या है ना, जो इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन को ये एक्टिविटी के लिए बुलाता है, इसलिए ये इसका सुपीरियर वर्च्यू है। नेक्स्ट 96, वन ऑफ द इम्प्लीकेशन ऑफ इक्वलिटी इन सोसाइटी इज द एब्सेंस ऑफ, यहाँ पे दो स्टेटमेंट मिलके लग गया है, तो ऑप्शन ए देखो यहाँ पे इसका अरेंजमेंट ठीक से नहीं हुआ है। ऑप्शन ए दिया प्रिविलेजेस, ऑप्शन बी दिया स्ट्रेंथ, ऑप्शन सी दिया कंपटीशन, ऑप्शन डी दिया है आइडियोलॉजी। याद रखो प्रिविलेजेस, इक्वलिटी मतलब इक्वल प्रिविलेजेस, अगर सोसाइटी में प्रिविलेजेस का ऑप्शन है इसका मतलब इक्वलिटी इन सोसाइटी। 97 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लो, Which one of the following are not necessarily the consequences of proclamation of president's rule in a state? इनमें से कौन सा है जो कि प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल एक स्टेट के ऊपर डालेंगे तो वो इफेक्टिव, नॉट नेसेसरली कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होगा। ऑप्शन स्टेटमेंट 1 दे डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये हो नहीं सकता, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये होगा रिमूवल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द स्टेट, रिमूवल भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसोल्यूशन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, नॉट नेसेसरली कॉन्सिक्वेंस, मतलब ये नहीं हो सकता, इसलिए ये क्वेश्चन के हिसाब से ये सही है। रिमूवल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द स्टेट, रिमूवल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये हो सकता है, इसलिए नॉट नेसेसरली दिया है तो ये गलत हो गया। डिसोल्यूशन ऑफ लोकल बॉडीज, डिसोल्यूशन ऑफ लोकल बॉडीज, तो ये क्या हो गया, ये भी गलत है, लेकिन ये स्टेटमेंट सही है, इसलिए 1-3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखो इसमें कि हमको ना गलत नॉट नेसेसरली कॉन्सिक्वेंसेस बोला, मतलब कौन सा नहीं होगा कॉन्सिक्वेंसेस, तो ये हो सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिमूवल करना पड़ता है, लेकिन असेंबली डिसॉल्व नहीं हो सकता और लोकल बॉडी भी डिसॉल्व नहीं हो सकता, तो ये दोनों स्टेटमेंट नहीं हो सकता, लेकिन और बाकी जो मिडिल वाला स्टेटमेंट वो हो सकता है। 98 नंबर क्वेश्चन, which one of the following is not a future of Indian फेडरलिज्म, इनमें से कौन सा इंडियन फेडरलिज्म का फ्यूचर नहीं है। नॉट पूछा है, ध्यान से देखो, नॉट पूछा है, जल्दी नहीं करना है क्वेश्चन पढ़ कर। देयर इज ए इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन इंडिया, बी पावर हैज बीन डिक्लेयर्ड डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, स्टेटमेंट 3 दिया है द फेडरेशन यूनिट हैव बीन गिवन अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा, स्टेटमेंट डी दिया है द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द फेडरेटिंग यूनिट, तो इनमें से कौन सा फ्यूचर नहीं है, तो याद रखो ना इंडिया का फेडरलिज्म एक एग्रीमेंट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट नहीं है इंडियन फेडरेलिज्म के बारे में। 99 लोकल सेल्फ गवर्नेंस कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन एज एन एक्सरसाइज इन, तो याद रखो इसका राइट आंसर क्या होगा, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। 100 नंबर देखो, द मेन एडवांटेज ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज दैट, इनमें से कौन सा जो कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मेन एडवांटेजमेंट एडवांटेज है, मतलब मेरिट है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, द एग्जीक्यूटिव रिमेन रेस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। याद रखो ये सबसे बड़ा फ्यूचर है
कि एग्जीक्यूटिव क्या, एग्जीक्यूटिव मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर मतलब लोकसभा, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा बा लेजिस्लेचर। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फ्यूचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है, 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो कल को हम नेक्स्ट अदर 50 क्वेश्चन पॉलिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो दिस इज फॉर टुडे, होप you like the video very much. Okay, before we have one more announcement. If you want any particular video related to your exam preparation, please comment below so that we will come with the new video which will helpful for your exam point of view. Okay, okay, this is for today. Okay, bye, see you tomorrow. Have a good day ahead.